find the sum of vectors. So it is exercise 10.2. Find the sum of vectors. A is given to you, that is I minus 2j plus k. Then B and C is given to you. B is equal to how much? So B is equal to minus 2i plus 4j plus 5k. Okay. And C is I minus 6j minus 7k. Okay. So if you want to add these three, तो आप कैसे भी ऐड कर सकते हैं, या फिर पहले a प्लस बी को ऐड कर दें फिर उसमें c को ऐड कर लें, वैसे आप लोग डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो यू ऑल नो दिस थिंग कि आप पहले क्या करेंगे, आई के कोएफिशिएंट्स जे के और के सबको ऐड करके यू विल गेट व्हाट फाइनली इट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2. ये तो आपका 0 ही हो गया. आई का कोएफिशिएंट जे का माइनस 2 प्लस 4, सो माइनस 8 प्लस 4 मीन्स माइनस 4j. एंड के आपके पास में क्या है, के 1 प्लस 5 6 माइनस 7 माइनस के. ओके, सो दिस इज फाइनली द आंसर. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is find the unit vector in the direction of this vector. So unit vector in the direction of any vector is given by, you know, a cap. So unit vector in the direction of a is given by a cap is equal to a upon modulus of a. ठीक है, तो ये आप लोग निकाल लेंगे a upon modulus of a. So you are given I plus j plus 2k upon under root of 1 plus 1 plus 4. Okay, so this will be unit vector in the direction of this vector a. Okay, now come to question number 8. Find the unit vector in the direction of PQ where P and Q are the points. So you are given the points P 1, 2, 3 and Q 4, 5, 6. ठीक है, अब आपको निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ. कौन बताएगा इसे? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ. उसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दिस वेक्टर PQ. So vector PQ will be vector joining these 2 points P and Q. ठीक है, तो निकाल के बताओ मुझे जल्दी से. अमन, अच्छा अमन का शायद माइक की प्रॉब्लम रहती है. कौन बताएगा? कार्तिके, yesterday you were there ना in the class? दिवांशी, अनुष्का, ओके. पहले PQ वेक्टर निकालेंगे, है ना? कार्तिके, व्हाट विल बी वेक्टर PQ? यस, बोलो बेटा, माइक ऑन करके अपना अनम्यूट करके बोलो. नो रेस्पॉन्स. अंजलि, आर यू देयर अंजलि? सबके माइक्स ऑफ रहते हैं. सो इट विल बी 3i प्लस 3j प्लस 3k, है ना? ओके, नाउ
unit vector in the direction of this PQ will be this divided by under root of this 3 square plus 3 square plus 3 square, isn't it? Okay, so that will be unit vector in the direction of PQ. ठीक है, कर लिया सबने? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने बताया ही था आपको कि इसके कंसेप्ट बस एक बार समझ में आ जाएंगे, देन द एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी. Yes. So now come to question number 9. Question number 9 is for given vectors A, B, find the unit vector in the direction of vector AB. So unit vector, if it is asked in the direction of any vector, first of all you have to find the value of that vector. Okay. So first you will be finding the value of A plus B from this given A and B. Okay. So you have A that is equal to 2i minus j plus 2k. 2i minus j plus 2k, and then you have B that is equal to minus I plus j minus k, है ना? So first of all you will be finding the value of A plus B. कितना आ रहा है A plus B? So it is equal to 2i minus I means I, j नहीं आएगा plus k, है ना? Isn't it? So you can also take it to be as vector C भी ले सकते हैं इसको, है ना? So unit vector in the direction of C will be I plus k upon under root of 2. Okay? तो इस तरह क्वेश्चन आज आपको क्लियर हो ही गए होंगे आप, है ना? Now come to question number 10. Find a vector in the direction of this which has magnitude 8 units. ठीक है, आपको एक वेक्टर निकालना है इसके डायरेक्शन में ही जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है. तो क्या होगा? सो वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i minus j plus 2k having magnitude 8 units will be what? 8 into a cap. That is 8 into this 5i minus j plus 2k upon under root of this 25 plus 1 plus 4 means 30. ठीक है? ओके. ये क्वेश्चन इतनी जल्दी कर रहे हैं कि कंसेप्ट को हमें ज्यादा टाइम देना है ना? नेक्स्ट एक्सरसाइज कंसेप्ट भी समझने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. कोई बताएगा ये कोलिनियर है क्या? अरे अब जल्दी जल्दी अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. शो दैट दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर. तो लेट दीज वेक्टर्स बी ए एंड बी. तो ए कितना है आपका? ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k और b है आपका माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k. Navneet, tell me, are these collinear? Okay, Devanshi is saying it is they are collinear. Okay, Chidesh, Varsha, Anushka, good. Pragya, Somil, Aman. What is the relation? Check. Okay, good. Relation क्या है? हार्दिक खाड़ा. Relation बताओगे बेटा? Okay, so Pragya is saying it is A is equal to minus 2b. Good. Minus 2 lambda b. Okay, correct. है ना? Okay, good. राजवी, प्रतिभा, है ना? आपको क्लियरली दिख रहा है कि A जो है
इज इक्वल टू -2b है ना। तो लेमडा आपका इधर 2 है, उसका मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनल है और उसका मतलब कोलिनियर है। ओके, सो दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। सो यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्वेश्चंस के अंदर आपके पास में अगर आता है सी, आपके पास में है वेक्टर ए, ले लेते हैं इसको, है ना। तो वेक्टर ए आपके पास में क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, 12th। So in question number 12, you have to find the direction cosine. So let this vector be A. A is equal to I plus 2j plus 3k. Okay. अब आपको निकालना है इसके डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो यूजुअली जब हमें इस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, उसका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा आपका, जैसे ए है आपका, इट विल बी आई प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9, है ना। सो इट इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। ये कैप आप लोग खुद लगा लेंगे, है ना। आई एम लीविंग दिस आई कैप जे कैप के कैप, है ना। सो अंडर रूट ऑफ 14, है ना। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस? डायरेक्शन कोसाइंस विल बी द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई, जे एंड के, इजंट इट, है ना। तो आपका क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन जो आप लेते हैं, इट विल बी व्हाट, इसमें हो जाएगा आपका 1/√14, 2/√14 और 3/√14, ठीक है। सो दीज ऑल आर योर डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 13। Find the direction cosines of the vector joining the points A and B directed from A to B. उसका मतलब if it is directed from A to B, ऐसे वेक्टर है आपके पास में, है ना। ए बी वेक्टर है और पॉइंट्स क्या दिए हैं आपके, ए के हैं 1 2 एंड -3 एंड बी के हैं -1 -2 और 1, ठीक है। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर जॉइनिंग ए एंड बी, मतलब पहले हमें वेक्टर ए बी निकालना है, इजंट इट। पहले वेक्टर ए बी निकालेंगे ना इसमें, अदरवाइज कैसे फाइंड करेंगे, है ना। सो वेक्टर ए बी विल बी व्हाट, -1 -1 मीन्स -2i -4j प्लस 4k, है ना, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। तो डायरेक्शन कोसाइंस आप निकाल ही लेंगे, मीन्स डायरेक्टली डिवाइडेड बाय, सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ line joining AB will be upon 4 plus 16 plus 16, ओके। तो ये हो गया आपका 36, मतलब 6 ही रहेगा डिनोमिनेटर में। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द वेक्टर, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बहुत बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ओके। सो द क्वेश्चन इज, show that the vector I plus j plus k, question number 14, let this vector be A and it is given by I plus j plus k. Now you are asked to show that this vector is equally inclined to the axis OX, OY and OZ.
if it is equally inclined to all this axis x, y and z, that means उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो x, y और z के साथ में जो एंगल बना रही है बना रहा है वेक्टर, सो ऑल दोज एंगल्स विल बी इक्वल, वो सेम होंगे। उसका मतलब इक्वल मतलब हम निकालने वाले हैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस से हमें मिलता क्या है? कॉस ऑफ दिस, है ना, कॉस ऑफ द एंगल विच द इट मेक्स विद द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, तो हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं? एल, एम और एन। ठीक है, तो इस केस में हमारा कितना हो जाएगा? इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर द एंगल्स विच दिस वेक्टर मेक्स विद दिस एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड, तो कॉस अल्फा कितना होगा? कॉस अल्फा विल बी व्हाट? 1/√3, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? पहले ये लाइन भी लिख लेना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ये भी लिख लेना, is given by a cap is equal to I plus j plus k upon under root of 1 plus 1 plus 1. So that is equal to √3. तो cos alpha भी √3 है, cos beta भी 1/√3 है और cos gamma भी 1/√3 है। उसका मतलब अल्फा, बीटा और गामा हमारे cos इनवर्स 1/√3 तीनों में वही सेम एंगल है। इट मींस इट इज इक्वली इंक्लाइंड विद ऑल द एक्सिस। ओके, सो दैट ओनली यू हैव टू शो। ये 1 और 2 मार्क्स में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। ओके, इज इट क्लियर? सो दे में आस्क द मेजर ऑफ एंगल, कौन से एंगल पे इंक्लाइंड है ना? ठीक है, तो इसे ध्यान से कर लेना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। Next question. So question number 15 is, find the position vector of a point R which divides the line joining 2 points P and Q. तो ये आपका क्या है? 2 पॉइंट्स है P और Q। तो हम इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, यूजुअली जैसे हम लोगों ने उस दिन समझा था। कैसे समझा था? ऐसे 2 ये थे, है ना, और ये थे आपके P और ये है Q, और ये है कोई और वेक्टर R, है ना? ठीक है, सो P एंड Q आपको क्या क्या दे रखे? I प्लस 2j माइनस के। ओके, और ये दे रखा है -I प्लस j प्लस के। ठीक है, तो इनको हम वेक्टर्स मान लेते हैं। ये हो गया आपका वेक्टर A, ये हो गया आपका वेक्टर B, और इसे हम क्या लेते थे? वेक्टर R, है ना? और इट इज डिवाइडिंग इन द रेशियो ऑफ 2:1, है ना? तो आपका PR इज टू QR 2:1 है, मीन्स M/N हमारा ये है। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट R। हमें R निकालना है व्हेन इट डिवाइड्स इंटरनली। तो R क्या हो जाएगा? अगर फर्स्ट केस में इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली, अब आप ही लोग बताओगे, है ना? So it is M into B plus N into A upon M plus N. अब आपको ये वेक्टर R बताना है। केतन, कैन यू टेल? केतन निकाला बेटा आपने? हाँ मैम, बताओ बेटा। तो M टाइम्स ऑफ B वेक्टर अपने पास आएगा I कैप माइनस I कैप प्लस G, मतलब 2 इंटू आई वॉन्ट फाइनली बेटा। अच्छा ओके ओके, आप सॉल्व करके मुझे बताओ वेक्टर R कितना आ रहा है। माइनस I कैप बाय 3 प्लस 4/3 J कैप ओके प्लस 1/3 K कैप प्लस 1/3। ओके,
ओके यस ओके, इज इट करेक्ट? बाकी लोगों ने निकाल लिया? ओके, so this is the vector r which is dividing it internally in the ratio of 2:1. और अगर एक्सटर्नली में निकालना है तो आप जस्ट माइनस साइन कर देंगे बीच में, क्योंकि एक्सटर्नली का मतलब हमारा r वेक्टर इधर आ जाएगा, है ना? सो इन दैट केस जस्ट मेक दिस साइन इक्वल टू माइनस, ठीक है? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, now come to question number 16. Find the position vector of midpoint of the vector joining these points. तो क्वेश्चन नंबर 16 इज जस्ट सिमिलर टू दिस। इसको मैं रब कर देती हूँ, इसी में बता देती हूँ आपको। देखो मिड पॉइंट है का मतलब आपका ये जो है आपके 1:1 है ना, isn't it? So you are given the vectors कौन कौन से हैं? P is here 2, 3 and 4 और Q है आपका 4, 1 और -2। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। So the only difference here will be it is the midpoint, so ratio will be क्या रहेगा आपका 1:1, है ना? बस सेम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया है वैसा ही करना है आपको। ओके, सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू टू कंप्लीट। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। So question number 17 is show that the points A, B and C with position vectors, आपके पास में ऐसे तीन कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं A, B और C, ठीक है? So here A, B and C with position vectors this, तो ये आपका 3i minus 4j minus 4k है ना, और ये है आपका जो भी है आप लिख लेना, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आपको क्या बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो वही AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC² आप बता देंगे, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बस, है ना? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकाल के जस्ट प्रूव दैट AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। So this will be the vertices of a right angle triangle, ठीक है? Now क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है? डायरेक्शंस देख लो, AB प्लस BC कौन से ट्रू नहीं है? दिस इज ट्रू और इट इज नॉट ट्रू। सी ओके, और डी वाला आपको पता ही है, टू कोलिनियर वेक्टर्स विच ऑफ दिस आर इनकरेक्ट। ठीक है, हो गया ये तो। सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। इस एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए हमने इसको स्पीड में कर लिया है, ठीक है? अब हमारे पास में आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? सो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज डिफाइंड इन 3 वेज, ठीक है? तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है इनका स्केलर प्रोडक्ट, और उसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है? एक होता है आपके पास में वेक्टर प्रोडक्ट, या इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और एक होता है आपका ट्रिपल प्रोडक्ट। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है? बट एक बार इसको देख लेंगे फिर भी।
तो ये 3 तरह के अब हमारे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है इस टॉपिक के अंदर वी विल सी वन बाय वन दीज 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपके अटेंडेंस ले लेती हूँ बिकॉज टुडे द टाइम इज शॉर्ट, so you all must be thinking कि आज क्या स्पेशल डे है ना, सोच रहे होगे आप तो। So today is actually your primary teacher, that is your own, बहुत पुरानी हमारी मैडम है मनोरमा मैडम, शी इज गोइंग टू रिटायर टुडे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा आपकी क्लासेस आज